So, hello everyone. So, we are going to start with this new chapter in physics. So, it is useful for 10th class students and 12th class students. And we are going to start with the geometrical optics. So, in the geometrical optics, we are essentially dealing with light, we are dealing with mirrors, lenses. So, you might have already learned about light, what's a mirror, what is a lens, okay? So normally there are phenomena like reflection, refraction, okay? So reflection occurs in case of, for example, we have plane mirrors, we have suppose concave or convex mirrors, and refraction occurs once there is suppose a medium, okay, which is transparent, and if the light falls on that on the transparent medium, so it refracts, okay? Now we are going to start with this chapter, geometrical optics. Suppose we have a plane mirror here, okay? So what is basically the difference between a mirror and a lens? In case of mirror, there's pure reflection, okay? Whenever light passes, whenever यहाँ पर light है, okay? This is the incident ray, okay? Now we are drawing a normal here, and it gets reflected. यहां से ये reflect होता है. So this is the reflected ray. Okay? This is a plane mirror here. This is a plane mirror. Now, in case of a lens, what will happen? Suppose we have a lens. Suppose we have a lens here. What will happen? This is the principal axis, and we are suppose keeping an object. Suppose this is we are keeping an object here. Okay. So what will happen? There will be a light which will be parallel to the principal axis, and it will get refracted. Okay. This will get refracted. First, this is our suppose rarer medium. This is denser. The refractive index of this. We'll learn about this. What is refractive index? Refractive index होता क्या है? Rarer medium किसे बोलते हैं और denser medium किसे बोलते हैं? So this is denser medium. This is rarer medium. This is suppose air. Here medium is air, and after passing through the lens, so what will happen? First it will get refracted here, okay, and after then again it will pass from denser medium to rarer medium. Now there are basic laws of reflection and basic laws of refraction. First law about reflection is that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay. So suppose हमारे पास एक मिरर है, ये लाइट पड़ी इस पे इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड, दिस इज द नॉर्मल, ओके, ये यहाँ पर नॉर्मल है, दिस इज 90, ये जो 90 है, बट दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज थीटा, सो दिस इज reflected angle, this is theta. So angle of incidence is equal to angle of reflection. Now second law about reflection is the incident ray, the reflected ray, and the normal, all three are coplanar. That means all three lie on the same plane. Okay. So suppose I am given an illustration here. So suppose this is an incident ray. This is an incident ray, and here is suppose a plane mirror, okay, and it is polished from the other side, okay, and reflection takes place from the other side. So what will happen? This is an incident ray, this is the reflected ray, and we are drawing normal. So normal will be like this one, okay, या ऐसे होगा, और normal इस डायरेक्शन में होगा. तो normal इस तरफ होगा, तो ये angle of incidence is equal to angle of reflection. Further, ये जो normal इस साइड से आएगा, these all three will be in the same plane, okay, they will be coplanar. Okay. Now image formation in case of a plane mirror. आपने अक्सर देखा होगा जब हम शीशे में देखते हैं, so suppose object is kept 5 centimeter away from the plane mirror, it appears that the image will be formed 5 centimeters away from the mirror. Okay. इसको हम अभी प्रूव करेंगे. यहां पर अगर हमारे पास सपोज है एक, दिस इज ए
दिस इज हियर अ प्लेन मिरर, हमारे पास प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में हमने क्या किया, दिस इज सपोज एन इंसिडेंट रे, दिस इज एन इंसिडेंट रे, we are drawing a normal to this surface, so normal will be in this direction, so this is a normal, and this will be angle of incidence theta. So this is an incident ray, and this is the reflected ray, now what will happen, this is normal, so already I have told you that angle of incidence is equal to angle of reflection, so this is theta, this is theta, okay. In case of light, angle of incidence is equal to angle of reflection. अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि इमेज कहां बनेगा, इमेज where the image will be formed, okay. In case of mirrors, generally in case of when we are talking about the plane mirrors, okay, plane mirrors और convex mirror में generally हमारे जो images होती है, in case of plane mirrors वो image generally are virtual क्या होता है और real image क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. अब सपोज मैंने क्या किया, यहां इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं यहां से एक इंसिडेंट रे डाल रहा हूं, यहां से दिस इज अनदर इंसिडेंट रे, ओके, सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर, ये ऑब्जेक्ट है, ओके. मुझे देखना है कि इमेज कहां बनेगी, इमेज वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, मुझे वो देखना है. तो अगर ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी थीटा, ओके. सो व्हाट विल हैपन, सो अगर मैं यहां से इंसिडेंट रे डाल रहा हूं, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यू कैन से इट्स 0, सो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्टेड रे जो है दैट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके. अब क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको मैं पीछे से क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, और इसको भी मैं एक्सटेंड करूंगा इसे. These two are not parallel, okay, यहां से ये डाइवर्जेंट है. अब मैं क्या करूंगा, it appears that they will meet at this point, that is image will be formed here at this point, okay. अब जरा सपोज ये एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और सपोज ये ए बी सी और ये डी पॉइंट है. अब जरा अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे और हमें प्रूव करना है कि दिस सी डी will be equal to AC, okay. Object distance is equal to the image distance. आपने देखा होगा प्लेन मिरर्स में जब हम देखते हैं तो हम जितना दूर पे रहते हैं उतने दूर इमेज भी बनता है, बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स, नॉट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर में जब हम बात करेंगे कनकेव और कन्वेक्स लेंस मिरर्स की, तो वहां पर ऐसा नहीं होता, ओके. इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स, so the object distance will be always equal to the image distance, okay, from the mirror. Now if we take these two triangles, triangle ABC or triangle DBC, okay, so this is theta, ये theta है तो ये भी theta है. Why? This is parallel to this one, okay, so this theta alternate interior angles, okay. This is theta, this is 90 minus theta, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा. वैसे भी अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे तो ये 90 है, दिस इज थीटा, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 90 माइनस थीटा. नाउ सपोज ये जो नॉर्मल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे से ऐसे एक्सटेंड करूंगा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, थीटा, ये भी थीटा होगा. अगर ये थीटा होगा तो ये भी ऑब्वियसली थीटा होगा, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है, तो यहां भी थीटा होगा. नाउ अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये साइड कॉमन है,
CB कॉमन है, ओके, CB इज द कॉमन साइड एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहां से tan थीटा निकालेंगे. tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. सो परपेंडिकुलर क्या है, BC, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है, CA, ओके. और यहां भी अगर हम निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा हमारा आएगा BC डिवाइडेड बाय CD. थीटा यहां भी, थीटा यहां भी, tan थीटा tan थीटा. सो वी कैन इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड. अगर हम इसको इक्वेट करेंगे so that means BC by CA is equal to BC by CD. BC खत्म, तो यहां बन जाएगा CD is equal to CA. CD क्या है, CD क्या है, इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस is equal to CA क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो हो गया प्रूव. ओके. So this angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the basic law. Second, so this is the basic law of reflection. और second क्या है? Second हमारा है कि angle incident ray, reflected ray and the normal, all three are coplanar. लेकिन जब हम बात करेंगे refraction की, मैं भी जाऊंगा वहां की उसकी तरफ, तो refraction में ऐसा angle of incidence is not equal to angle of refraction. Okay, provided the two mediums do not, if they have same refractive index, only then it is possible. Otherwise अगर रियरर से डेंसर होगा या डेंसर से रियरर की तरफ लाइट जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो यह आया समझ में. सो वी आर गोइंग टू नाउ विद द स्फेरिकल मिरर्स. ओके, नाउ विल डील विद द स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स. ओके, पहला होता है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, दैट इज अ प्लेन मिरर. जो घर में आपके शीशा जो होता है घर में, तो वो जो होता है जनरली किसमें वो होता है, दैट इज अ प्लेन मिरर. ओके, लेकिन जब आप घर में सपोज देखते हैं व्हीकल्स में जो यूज होता है और बाइक्स में जो यूज होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ओके, दैट इज नॉट अ प्लेन मिरर. ओके, दैट्स अ कन्वेक्स मिरर. तो वो एक स्फेरिकल मिरर ही होता है. तो स्फेरिकल मिरर्स में देयर आर टू टाइप्स. ओके, वन इज कॉल्ड एज अ कनकेव and another is convex mirror. तो कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है. तो मिरर में आपने पढ़ा है कि मिरर में एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जहां से एक साइड में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फिर बनती है, वर्चुअल बनती है. तो लेकिन एक साइड क्या होता है इसमें, मिरर में पॉलिश्ड होता है. Similarly, in case of concave mirror and convex mirror, there will be obviously one side will be polished and another side will be a reflecting part. Okay, so अगर हम suppose concave mirror की तरफ concave mirror, so यहाँ पर concave mirror है. so concave mirror में this is a concave mirror. Okay, और convex mirror क्या होता है, दिस, ये जो कनकेव पार्ट है, इसका कनकेव साइड जो है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट. ओके, और जो इसका कन्वेक्स साइड है दैट इज पॉलिश्ड. तो रिफ्लेक्शन जो होगा इस साइड होगा. ओके, सो चूंकि ये स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर में कोई भी स्फीयर होगा उसका सेंटर भी होगा. ओके, जस्ट लाइक आप हम इसको 3D पे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट वी विल रिप्रेजेंट इट इन टू डायमेंशन. ओके, यहाँ पर टू डायमेंशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे पूरा बनाएंगे, ऐसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एक्चुअली एक स्फीयर है. ओके, सो वी आर प्रोजेक्टिंग ऑन द टू डायमेंशनल बोर्ड. सो यहां पर इसका सेंटर होगा, सेंटर C, और जो यहां पर इसका मिडल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द पोल. यहां पर ये दिस इज कॉल्ड एज अ पोल एंड वी डिनोट पोल विद P एंड सेंटर ऑफ
दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहां पर हम इसको डिनोट करेंगे सी के साथ, ओके। क्योंकि इसका सेंटर होगा, ये पूरा ऐसे स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर। तो अगर हम इसको सर्कल बनाएंगे यहां पर बोर्ड में, तो यहां पर इसका जो सेंटर होगा दैट विल बी सी, ओके। नाउ ये सी है और ये पी है, ओके। नाउ वी आर ड्राइंग अ लाइन, ओके। This line that joins C and P, okay, that is called as the principal axis. इसको क्या बोलते हैं हम? principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम प्रूव करेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट है P और C, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस F, ओके। ये सेंटर में आता है, लेकिन हम बाद में इसको प्रूव करेंगे, ओके, कि एक्चुअली P और C के बीच में आता है। अब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट में रखूंगा यहां पर, सपोज मैंने C के यहां पर ऑब्जेक्ट रखा। अब मुझे बताना है कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने C के इस तरफ रखा या इन्फिनिटी पे रखा या C पे रखा या C और P के बीच में, सॉरी C और F के बीच में रखा और या F और P के बीच में रखा, तो इमेज कहां बनेगी? उसके लिए आपको क्या करना है? देयर आर सम रूल्स, ओके। फर्स्ट, पहला क्या है? जो भी लाइन, जो भी इंसिडेंट रे पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से, that will get reflected in the same direction. मतलब अगर यहां से इंसिडेंट रे पड़ी, यहां से, this will get reflected in the same direction, okay. Why? I will give the reason. अगर ये लाइन ऐसे सपोज इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो this is getting reflected in the same direction, okay. और दूसरा क्या है? जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ये फोकस जो है F यहां से पास होता है, ओके। ये कैसे? इसको समझना पड़ेगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली, एक तो यहां पर हमारे जो बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, पहला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री आर कोप्लेनर, ओके। नाउ हियर सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ओके। तो इंसिडेंट रे यहां पड़ रही है, क्योंकि ये क्या है? ये जो है दिस इज ए स्फेरिकल मिरर। नाउ व्हाट विल हैपन? नॉर्मल वोंट बी, इट इज नॉट अ केस ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होगा? नॉर्मल जो होगा दैट इज, या ऐसे प्लेन मिरर है तो ऐसे डाल सकते हैं, दिस इज ए नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर ड्राइंग ए टेंजेंट हियर। हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, जहां पर इंसिडेंट रे पड़ी, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट पे क्या हम करेंगे? हम एक नॉर्मल डालेंगे। जब हम नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल जो है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में, जब अब सर्कल होता है और सर्कल पे कोई भी पॉइंट होता है, ये टेंजेंट होता है, और अगर हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दैट नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर, यह हमेशा होता है, ओके। अगर हम सपोज यहां पर नॉर्मल, सपोज यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां नॉर्मल डालेंगे, तो दिस विल पास थ्रू द सेंटर। सो सेम थिंग हियर, ओके। दिस इज सपोज अ सर्कल and we are drawing a normal, so that normal will pass through the center of curvature. Now ये टेंजेंट है, तो नॉर्मल ये है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है, और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, so the incident ray that the angle that is made by the incident ray with this normal is called as a angle of incidence. So it will now get reflected in this direction. Okay, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. अब अगर ये भी थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Okay, so this will pass through this one. Okay, it will pass through the focus. Similarly, suppose कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है. ओके, सो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल टेंजेंट डाल रहा हूं, इस पॉइंट जो टेंजेंट है यहां पर, दिस विल बी ऑलवेज नॉर्मल. ओके, सपोज ऐसे मैं डाल रहा हूं, दिस इज अनदर रे. ओके, यहां जो टेंजेंट होगा ऐसे नॉर्मल यही होगा, नॉर्मल यही है. तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल की तरफ जा रहा है तो obviously it will get reflected in the same direction. That's why we are denoting it with a single line. Okay, single line क्या represent करता है, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी. Okay, so we'll continue this in the next class. Okay.